Hello students, good morning. Now class 6th playing with numbers chapter number 3, and today first of all we will discuss some basic terms related to this topic playing with numbers, and then we will do the exercise 3a. The basic terms to start the exercise 3a, first we have to learn what is divisibility, then what are the factors, then what do you understand by multiples, what do you understand by even number and odd number. So first of all, let us talk about divisibility. What do you understand by divisibility? So let us take one example. For example, if we have given a number 16 and if we have to divide this 16 by a given number 8, then we have to see whether the given number 16 is the multiple of 8 or no. Then you have to speak the table of 8. 8 ones are 8, 8 twos are 16. So here the divisor is 8, dividend is 16, and the quotient is 2 and remainder is 0. So divisibility means if we divide any given number by another whole number, and if the quotient is a whole number, and if the remainder is 0, then we can say that the given number 16 is completely divisible by 8, and this process is known as the divisibility. So what do you understand by divisibility? We have given two numbers, one is divisor, another is dividend. For example, 16 is the dividend, 8 is the divisor. Then if we divide 16 by 8, then it divides completely 2 times, the remainder is 0. So the main condition of the divisibility is if we divide one number by the another number, then quotient should be a whole number and remainder should be 0, then this process is known as divisibility. Now second term, what do you understand by factors? Factor of any number means that number which exact divide the given number. For example, if we have a number is 6, okay, then first of all factor means a number that exactly divide the given number. अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 6 को completely divide करते हैं, तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर given number that is itself is always divide the given number. जैसे मैं 6 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 1 जा 6, remainder is 0. So by the divisibility rule, this 6 is divided by 6 by 1 time. इसका मतलब 6 जो है 6 का फैक्टर है. सेकंड, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. अगर मैं 6 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार डिवाइड होगा? 6 बार डिवाइड होगा. सो सबसे पहले whenever you want to know about the factors, means factor means those number which exactly divide the given number. तो मैं अब आपको ये पूछूं कि 6 को कौन कौन से नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले तो 1 हर नंबर को डिवाइड करता है. एक 6 इटसेल्फ खुद को डिवाइड करता है, और बाकी देखो छोटा नंबर है इसलिए अपन इजीली निकाल सकते हैं कि कौन कौन से नंबर. बड़ा नंबर हो तो थोड़ा सा अपन प्रोसेस आगे की एक्सरसाइज में सीखेंगे. अब देखो 1 के बाद 2 एक ऐसा नंबर है जो 6 को कंप्लीटली 3 टाइम डिवाइड करता है. ऐसे ही अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 6 को 2 टाइम डिवाइड करता, और 3 के बाद 6 को 1 टाइम डिवाइड करता. सो ये नंबर 1 2 3 and 6 these are the factors of 6. इसका मतलब फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ? दोज नंबर which divides
the given number एग्जैक्टली का मतलब रिमाइंडर जो है उनका 0 होना चाहिए और जो क्वोशिएंट है वो होल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? होल नंबर। सो फैक्टर्स मींस दोज नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। तो हमने एग्जांपल लिया कि जैसे 6 के फैक्टर 1 2 3 एंड 6 है। ऐसे ही वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर जैसे 12 है और आपसे पूछा जाए कि 12 के फैक्टर लिखिए, तो देखो 12 का सबसे पहला फैक्टर तो खुद है 1, ठीक है। देन 12 इटसेल्फ है, देन 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है। सो 1 2 3 4 6 and 12 these are the factors of given number. So hope it is clear. Factors means those number which divide the given number exactly are known as factors. Now next is multiple. What do you understand by multiple? So multiple का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर को मैं किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर 3 लिया और मैं कहूं कि इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 1 जा 3 आएगा। अगर मुझे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो 3 2 जा 6 आएगा। देन 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 आएगा और 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आएगा एंड सो ऑन। अपन मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर को, तो छोटी क्लास तीसरी क्लास में भी पढ़ा कि किसी नंबर को दूसरे नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आजकल तो नए स्टैंडर्ड में यूकेजी में भी मल्टीपल सिखाने लग गई है। तो अब हमें ये देखना है कि मल्टीपल्स का मतलब क्या है। तो जो रिजल्ट आ रहा है 3, ये 3 का फर्स्ट मल्टीपल है। समझना है कि 3 को मैं किसी होल नंबर से जैसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। तो दिस 6 इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 3। वैसे ही ये जो 9 है 3 का थर्ड मल्टीपल है एंड सिमिलरली 12 इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 3। सो multiples means if any given number multiply by a whole number, then product is the multiple of times to that whole number. So these are the about multiple. Now next, what is the even number? Even number का मतलब those number which are exactly divided by 2. जैसे for example 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये दो नंबर के डिफरेंस में जो 2 से स्टार्ट हो रहे, इनमें किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, देखो 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 बार आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा 2 बार, 2 से डिवाइड करूंगा 3 बार, 8 को 2 से डिवाइड करूंगा 4 बार, 10 को 2 से डिवाइड करूंगा 5 टाइम, 12 को 2 से डिवाइड करूंगा 6 टाइम। तो 6 4 2 4 6 8 10 12 these number are even number. So even number का मतलब even number means those number which are divisible by 2 exactly कि वो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिखा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, दीज आर even number. Then next आ रहा है odd number. Odd number का मतलब those number which are not divisible by 2. Not divisible by 2 ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, those number are known as odd number, जिसमें सबसे पहला नंबर होता है 1 में 2 का डिवाइड नहीं होता है, फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 एंड सो ऑन। These type number are known as odd number. So on the basis of divisibility, factors, multiples, even number and odd number, now we have to do the exercise 3A. Then some more basic terms we will discuss and then we will do next exercise. So let us see first एक्सरसाइज 3A। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और वो है आपके सामने, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको
थर्ड ए एक्सरसाइज में, और जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 12 के क्या क्या फैक्टर है। देखो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि 12 हर एक नंबर का 1 और इटसेल्फ तो फैक्टर होते ही होते। अब आपको देखना है कि 12 में किस किस का डिवाइड होता है, तो 1 का, 1 के बाद 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, देन 12। तो 1 2 3 4 5 6 आर फैक्टर्स। किसके हैं? आर फैक्टर्स ऑफ 12। किसके फैक्टर है ये? 12। दूसरा क्वेश्चन 14 के कौन कौन से फैक्टर? तो 1 के बाद 2 के बाद 7 और उसके बाद 14 इटसेल्फ। देखो हर नंबर का 2 फैक्टर तो आपको बिना देखे लिखना है, एक तो खुद और एक 1। तो एक तो 1 और एक 14। आप बीच में देखना है कि 1 और 14 के बीच में ऐसे कौन से नंबर जो 14 को पूरे पूरे डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में भी 14 आता है और 7 की टेबल में भी आता है। और कोई नंबर है क्या? नहीं। चलो तीसरा क्वेश्चन है 19। अब देखो ये 19 तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। तो जो प्राइम नंबर है उनके लिए तो सीधा आंख में बंद करके लिखना 1 और 19। उसके लिए अलावा तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है ये। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 के फैक्टर को देखो। एक तो 21 का 1 है, एक 3 है, एक 7 है और एक बेचारा 21 खुद ही है। देन नेक्स्ट है 24। अब देखो 24 के तो बहुत सारे फैक्टर। देखो 24 में किस किस की टेबल में 24 आता है? देखो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 के में भी आता है, 4 की में भी आता है, 6 की में भी आता है, 8 की में भी आता है, 12 की में आता है, खुद 24 की टेबल में आता ही आता है। सो 1 2 3 4 6 8 12 24 ये सारे फैक्टर है किसके? 12 के। फैक्टर का मतलब वो नंबर जो ये 24 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं या जिनकी टेबल में 24 आता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन F23। अब 23 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक 1 इटसेल्फ। देख नेक्स्ट लिखिए जी जैसे 42 है। अब देखो 42 का में किस किस का डिवाइड होता है? 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 6 का होता है, 7 का होता है, 7 के बाद 14 का होता है, 14 के बाद 21 का होता है और 42 खुद ही होता है। देखो नेक्स्ट देन है 85। देखो 85 में किस किस का डिवीजन होता है? देखो 85 में 1 का होता है और देन 85 के 1 के बाद 5 का होता है, फिर 5 के बाद में किसका होता है? 19 का होता है। 19 के बाद खुद 85 की। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 85। देन एक नंबर है देखो 73। ये 73 किसकी टेबल में आता है? 73 प्राइम नंबर है, 1 और 73 इटसेल्फ। देन आपका आता है 92। नेक्स्ट है 92। देखो 92 की टेबल में कौन? 1 के बाद 2 के बाद देखो 3 का नहीं होता है, 4 का होता है, फिर 92 में 6 का नहीं होता है, देन 7 का भी नहीं होता है, 8 का भी नहीं होता है, 9 का भी नहीं होता, 10 का भी नहीं होता है, देन 41 का होता है, 41 and 92 itself. So these are the factors of given number. So please pause the video and note down. Now question number second. Question number second में हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल का मतलब किसी भी नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज मल्टीपल ऑफ विच ऑर्डर? ऑफ द होल नंबर ऑर्डर। So question number second, write down the first 5 multiple of 2. जैसे पहला क्वेश्चन 2 के फर्स्ट 5 तो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5। देखो 2 into 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10।
तो ये 2 4 6 8 10 जो है ये फर्स्ट 5 मल्टीपल, एक से लगातार 5 तक। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 के भी फर्स्ट पे, तो 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 4, 4 into 5। देखो 4 into 1 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये 4 से 8 12 16 20 ये 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हैं। ऐसे ही 6 के मल्टीपल लिखो तो 6 into 1 बराबर 6, 6 into 2 बराबर 12, 6 into 3 that is 18, 6 into 4 24, 6 into 5 30। तो ये जो नंबर हैं ये 6 का फर्स्ट मल्टीपल है, 12 6 का सेकेंड मल्टीपल है, 18 6 का थर्ड मल्टीपल है, 24 6 का फोर्थ मल्टीपल है, 30 6 का फिफ्थ मल्टीपल है। एंड डी में देखो 9 into 1, 9 into 2, 9 into 3, 9 into 4, 9 into 5 ये 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल है। कौन कौन से? फर्स्ट 9 है, सेकंड 18 है, थर्ड 27 है, फोर्थ 36 है, फिफ्थ 45 है। देन वन मोर क्वेश्चन दैट इज ई। ये कह रहा है कि 10 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो 10 का फर्स्ट मल्टीपल 10, 10 का सेकेंड मल्टीपल 20, 10 का थर्ड मल्टीपल 30, 10 का फोर्थ मल्टीपल 40 है और 10 का फिफ्थ मल्टीपल 50 है। सो दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 1 and 20। 7 के वो मल्टीपल निकालो जो 1 और 75 के बीच में है। देखो 7 के देखो 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7 है और 7 का 10th मल्टीपल 70 है और 11th मल्टीपल कौन सा होता है? 77 हो जाएगा। तो एक प्रकार से 7 के वो मल्टीपल जो 75 से छोटे, मतलब 7 की टेबल लिखनी है पूरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो 7 के वो मल्टीपल निकालना जो 1 और 75 के बीच में हो। तो 7 का फर्स्ट मल्टीपल तो 7 है और 7 का 10th मल्टीपल 70 है और 7 का अगर 11th मल्टीपल निकालूंगा तो 77 है, वो तो 75 से बड़ा हो गया, मतलब मुझे 70 से छोटे वाले चाहिए। तो देखो 7 into 2 14, 7 into 3 21, 7 into 4 28, 7 into 5 35, 7 into 6 42, 7 into 7 49, 7 into 8 56, 7 into 9 63 और 7 into 10, 7 into 10 कितना हो गया? 70। तो these are the multiple of 7, that is first 10 मल्टीपल ही 7 के ऐसे होते हैं जो 1 और 75 के बीच में होते हैं। देखो 10th मल्टीपल 70 है, जैसे ही मैं 11th मल्टीपल करूंगा तो 77 आ जाएगा, वो तो 75 से बड़ा है। तो 7 के फर्स्ट 10 मल्टीपल 75 से छोटे होते हैं। आपसे उल्टा भी पूछ ले कि 7 के ऐसे कितने मल्टीपल है जो 75 से छोटे हैं? तो 10 मल्टीपल। चलिए पॉज द वीडियो, नोट डाउन। The next question पूछ रहा है फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 up to 100। 9 के वो सारे मल्टीपल निकालो जो 100 तक हैं। तो 9 की टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 और 9 11 जा 99। तो ये 100 से जस्ट पहले तक के सारे 9 के मल्टीपल लिख दिए। तो टोटल मल्टीपल कितने हुए? 11 मल्टीपल हो गए। ओके, और ये मल्टीपल कौन कौन, जैसे फिर से बता रहा हूं, 9 जो है 9th का कौन सा मल्टीपल है? फर्स्ट। 18 9th का कौन सा मल्टीपल है? सेकेंड। 27 9th का कौन सा मल्टीपल है? थर्ड। 36 9th का कौन सा मल्टीपल है? फोर्थ। 45 9th का कौन सा मल्टीपल है? फिफ्थ।
इस तरीके से अपन किसी भी नंबर के मल्टीपल लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिए हैं रैंडमाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, इसने कहा कि 75 का 9th मल्टीपल निकालो, तो मैं 75 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9 की टेबल 5 बार बोले, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 7 जा 63 और 4 67। तो 600 जो 75 है वो 9 का कौन सा मल्टीपल है, सॉरी 75 का कौन सा मल्टीपल है, 9th मल्टीपल। फिर ये पूछ रहा है कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 10 बिटवीन 150 एंड 200। 10 के वो मल्टीपल निकालो जो 150 से तो बड़े हो और 200 से छोटे हो। तो देखो हम इनके बीच वाले, इनके बीच में भी जैसे माना कि पहला जो मल्टीपल होगा, अगर मैं 150 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 16 से, सॉरी 11 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 6। देखो 10 का 10 का मल्टीपल निकालना, अपन क्या लिख रहे हैं, 150 से बड़ा और 200 से छोटा 10th के मल्टीपल। तो देखो मैं 10 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करूं तो 160 आएगा। तो 160 जो है वो 150 के बाद और 200 से बड़ा, तो कौन सा मल्टीपल है, 10th का, 16th मल्टीपल। ऐसे ही मैं 10 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 170, 10 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा 180, और 10th को अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 190। तो 10th का 16वां मल्टीपल 160 है, 17वां मल्टीपल 17th मल्टीपल 170 है, 18th मल्टीपल 180 है, 19th मल्टीपल 190। ये 4 मल्टीपल जो है वो 150 से ज्यादा है और 200 से छोटे हैं। तो यहां लिख देंगे अपन, एक तो 160 है, फिर 170 है, फिर 180 है, फिर 190। ये केवल 4 मल्टीपल हैं जो 10 के मल्टीपल हैं, लेकिन वो 150 से बड़े हैं और 200 से छोटे हैं। सो इट वॉज अबाउट द डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इवन नंबर, ओड नंबर एंड एप्लीकेशन ऑफ these terms. So hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it. In next video we will do next exercise. Thank you. Have a nice day.